فرصت ہے، آج لمحہ ہے، آج بس آج، الیوم الیوم، بس آج کا دن ہے، کل میرے پاس نہیں ہے۔ اور انہی اتار چڑھاؤ توڑ پھوڑ کے ساتھ ہی زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے۔ کبھی گھر کی طرف سے، کبھی بیٹی بیٹے کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے کمی بیشی، کبھی اپنے دوست ساتھی کی طرف سے، کبھی ہم سفر کی طرف سے، اتار چڑھاؤ، چبھن، جلن، سوز، یہ زندگی کا سفر میں یہ ساتھی رہیں گے۔ کتنے محدثین ایسے ہیں جن کے جنازے جیلوں سے نکلے ہیں۔ امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا، امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اتنی بڑی محدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنا شہر نصیب نہیں ہونے دیا۔ بخارا میں نہیں ہے ان کا مزار، کہاں ہے؟ سمرقند میں۔ میری باپ سے درخواست ہے، کبھی زندگی کے سفر میں آپ کہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، اللہ کو ایسا لمحہ ہو سارے جھمیلے ختم ہو جائیں اور میں بیٹھ کے تسبیح کروں، میں بیٹھ کے ذکر کروں، میں بیٹھ کے اعمال کروں، یہ کبھی نہ سوچئے گا۔ اور کبھی اس کی وجہ سے منزل نہ چھوڑ جائیے گا۔ اس نے کہا بھائی بچ کے چلو، بس اپنی عزت بچاؤ، یہاں لگائی بجائی ہے، یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی شعبہ آپ بتائیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ کمی بیشی نہ ہو، بتا دیں، کوئی ایک شعبہ بتا دیں۔ ایک اونٹ والا تھا، اس کے اونٹ کو پیاس لگی۔ جب اس کے اونٹ کو پیاس لگی تو دیکھا تو ایک کنواں چل رہا تھا، بیلوں کے ساتھ کنواں چلتا ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی کنویں تھے، میں نے دیکھے ہیں، بعد میں ٹیوب ویل آ گئے۔ تو کنویں جو تھے جب وہ چلتے تھے تو کھٹ کھٹ ٹھک ٹھک ایسے ہوتی تھی، دو بیل چلتے تھے ایسے، اور پانی باہر نکلتا تھا اور کھیتوں کو پانی، باغ کو پانی لگتا تھا۔ تو جب کنواں چل رہا تھا تو اس کی ٹھک 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 ہو رہی تھی۔ اب اونٹ ڈرے، وہ پانی کی طرف ایسے منہ لے جائے، پھر آواز آئے، پھر ڈرے۔ تو اس نے کنویں والے سے کہا کہ یہ کھٹ کھٹ ٹھک ٹھک نہ کر۔ اس نے کہا بابا یہ کھٹ کھٹ ہوگی تو گٹ گٹ ہوگی، گٹ گٹ سے مراد پانی، اگر یہ ٹھک ٹھک ختم ہو گئی تو گٹ گٹ بھی ختم ہو جائے گی، ایک ٹھک ٹھک کے ساتھ ہی پانی پلانا پڑے گا۔ حج کتنا بڑا عمل ہے، اللہ پاک جل شانہ نے حج کے عمل میں 3 چیزیں فرمائی ہیں، خیال کرنا حج میں 3 چیزیں آئیں گی، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ خیال کرنا، رفث کہتے ہیں زبان کے گناہ کو، فسوق کہتے ہیں جسم کے گناہ کو، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو۔ خیال کرنا حج میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ زندگی کا کوئی سفر، آپ کسی آفس میں جائیں، کسی کالج میں جائیں، کسی دفتر میں جائیں، کسی محکمے میں جائیں، وہاں سوچوں میں تبدیلیاں، آپس میں کمی بیشی، ایک دوسرے کی شکایت یا اصلاح، یہ ہر شعبے میں موجود ہے، ہر شعبے میں موجود ہے، اور سفر اسی کے دوران کرنا ہے۔ بارش بھی سخت ہے اور منزل پہ بھی پہنچنا ہے، پھر کیچڑ نہیں دیکھی جاتی، پھر پاؤں کسی اینٹ پہ، پھر پاؤں کسی اونچی جگہ پہ، اور کبھی خود پاؤں پانی کے اندر۔ منزل کو نہیں چھوڑا جاتا، ان چیزوں کو پانچے اوپر کر لیے گئے، اگر بھیگ گئے تو دھو لیے، چھینٹے پڑ گئے تو نشان اس کو صاف کر لیا، پر منزل کبھی نہیں چھوڑی جاتی۔ انسان جب کسی منزل میں پرانا ہو جاتا ہے پھر اس کو سارے عیب ہی نظر آتے ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی، اس کو سارے عیب نظر آتے ہیں۔
آج تسبیح خانے میں ملیشیا کی ایک بہت بڑی شخصیت آئی. ہمارے ساتھ پڑوسی ہیں. ECS جوتوں کی ایک بہت بڑی چین ہے. اس کے مالک، ان کا محبت ہے، میرے پاس آئے. میں نے انہیں سارا وزٹ کرایا. وہ دین کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، اور پاکستان میں پڑھتے رہے ہیں. ایک تعلیمی ادارے میں تو اردو بول لیتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ میں یہاں کے حسن انتظام کو دیکھنے آیا ہوں، مجھے وہ عمل بتائیں جس کی وجہ سے آپ کا حسن انتظام ہے کہ تسبیح خانے کا پیغام پوری دنیا، پورے ورلڈ میں آپ کی ہر ویڈیو، ہر درس، ہر لیکچر سنتا ہوں اور ہر چیز دیکھتا ہوں. میں کوئی بھی بات کرتا تھا تو کہتے ہاں میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی. وہ کہتے ہیں مجھے حسن انتظام بتائیں کہ آپ کا حسن انتظام کے لیے آپ کے پاس کون سا عمل ہے، وہ مجھے بتائیں. پھر میں نے انہیں سارا وزٹ کرایا. حیران ہوئے، اتنا بڑا مجمع، سکوت، صفائی، سلیقہ، نظم. جب انسان پرانا ہو جاتا ہے پھر اس سے خامیاں اور کمیاں نظر آتی ہیں، اور یہیں سے اللہ پاک کا نظام ہے وہ نیچے گرتا ہے. ایک بزرگ تھے حاجی صاحب، ان سے کسی نے کہا حضرت فلاں بندہ کام سے بیٹھ گیا ہے. فرمایا لے چلو. جب جا رہے تھے تو ساتھ رہبر نے کہا حضرت وہ ہر چیز پہ اعتراض کرتا ہے، ساتھیوں پہ اعتراض کرتا ہے، ان کی کمیوں کو دیکھتا ہے. فرمایا مجھے واپس لے چلو، جو کمیوں کو دیکھتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرو. میں اس سے ملاقات نہیں کرتا، مجھے واپس لے چلو. ہمیں سفر زندگی طے کرنا ہے، اور اللہ کا نظام ہے، اللہ کی رحمت ہے. آپ کے حسن انتظام، آپ کا ڈسپلن، آپ کا نظم، آپ کی ترتیب، آپ کا سلیقہ، آپ کی صفائی اور آپ کا نظام، یہ سارا جس کو ہم سختی نہ کہیں پابندی کہیں، اور پابندی یہ ساری کی ساری دنیا مثال دے کے دینے آئی ہے کہ تسبیح خانے کا نظام، تسبیح خانے کے میڈیا کا نظام، تسبیح خانے کی ترتیب کیا حسن انتظام ہے. کبھی نہ کہیے کہ ہم فارغ ہو جائیں، ہمیں فرصت مل جائے، گھر سے فون بھی آئے گا، دفتر کاروبار سے خبریں بھی سننے کو ملیں گی، اور لوگوں کے اعتراضات. ایک ہمارے خدمت والے تھے، ایک تو میں نے ان کو مایوس دیکھا. کیا ہوا؟ کہنے لگے فلاں میرے اوپر شکایت کرتا ہے، فلاں باتیں کرتا ہے، فلاں اعتراض کرتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. میں کہ لگتا یہ ہے کہ آپ پہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. کہ ہاں. میں نے کہا مجھ سے زیادہ ہے، اٹھا میرا میڈیا، مجھ سے زیادہ ہے. پھر میں نے اپنی منزل چھوڑ دی، اپنا کام چھوڑ دیا. کیا یہی نیگیٹو کمنٹس اللہ کے حبیب کملی والے پہ نہیں آئے تھے؟ وہ معصوم، وہ عظیم، وہ گریٹ، وہ پاک. دشمن ساحر او کذاب، نعوذ باللہ کہتے ہیں تو جادوگر ہے، اور نعوذ باللہ جھوٹا ہے. الزامات کی انتہا. منزل نہیں چھوڑنی، منزل تری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. بہت کچھ سننے کو ملے گا. یوسوس فی صدور الناس، کبھی وسوسے آئیں گے، من الجنت والناس، کبھی نظر آئیں گے، کبھی انسانوں کے ذریعے، کبھی جنوں کے ذریعے. یعنی سے مراد اندر وسوسے ڈالے جائیں گے، کبھی انسانوں کے ذریعے. حوصلے بلند رکھیے گا. منزل پہ پہنچانا ہے سارے عالم اور امت کو. زندگی کا کوئی طبقہ مجھے ایسا بتا دیں، وہ مدرسے کا ہے، وہ تبلیغ کا ہے، وہ خانقاہ کا ہے، وہ کالج کا ہے، وہ یونیورسٹی کا ہے، وہ سگے بھائی ہیں. سگے بھائیوں میں ہر بھائی کی سوچ علیحدہ ہے، ہر بھائی کا مزاج علیحدہ ہے، اللہ نے بنایا ہے. ہر بھائی کی طبیعت علیحدہ ہے، اللہ نے بنائی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھائیوں سے ناتا رابطہ بھی چھوڑ دیتے ہیں.
अपने खानदान में खानदान को भी छोड़ देते हैं। हम अपने कारोबार में देखें, हमारे मुलाजिम जितने भी हैं, हर मुलाजिम की अपनी सोच है, फिर कारोबार भी छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। अगर वो नहीं छोड़ते तो फिर वो खैर की मंजिल, जिस खैर की मंजिल की आप बुनियादें हैं, उस खैर की मंजिल को सिर्फ इस वजह से बच के रहो, यहाँ कुछ नहीं है, शिकायत है, यहाँ बाबा छोड़ो, एक तरफ हट के रहो, और अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह तुझे कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तेरी जगह और बंदों को ले आया, तू महरूम रह गया। खैर अल्लाह ने फैलाई और पूरे आलम में फैलाई। कितनी जिंदगियां ऐसी हैं जो बदली हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे, जिनकी नस्लें, जिनके अकीदे, जिनके ईमान, जिनके खानदान, जिंदगियां बदल गई हैं। ये कदम कदम बलाएं, ये सौदा ये कुए जानो, ये हाल आएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ख्याल करना, जब हमारी राहों में चलोगे हम तुम्हारे पर हाल लाएंगे, हर हाल में चलना आ जाए क्यों कहते हैं, हाल के अमर को पहचानना आ जाए क्यों कहते हैं, हर हाल में मंजिल की तरफ बढ़ना आ जाए क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं सारा इकराम नयों के लिए, सारे उसूल पुरानों के लिए, सारी नरमियां नयों के लिए, सारी सख्तियां पुरानों के लिए क्यों कहते हैं। अल्लाह पाक ने हमें आपको यह सच्ची राह दी है और यह सच्ची मंजिल दी है। फिर इंसान जब दूर होता है फिर उसको सारा कुछ शिर्क नजर आता है, वो कहते हैं ये शिर्क हो रहा है, हालांकि हर अमल की दलील किताबों में मौजूद है। फिर उसको बिदत नजर आता है। जब इंसान दूर होता है उसको सब दुकानदारी नजर आती है और दौलत की और माल की कशिश का जरिया नजर आता है और सब शोहरत नजर आती है। जब इंसान दूर हो जाता है फिर वसाविस और बदगुमानियां और सुनी सुनाई पे यकीन कामिल हो जाता है। ख्याल करना, अल्लाह से इस्तकामत मांगते रहना, और रब का अनोखा निज़ाम है, रब का अनोखा निज़ाम है। हजरत ने भेजा कि एक जगह इर्तिदाद फैल गया, इस बंदे को भेजा, आलिम था बहुत बड़ा, कि वहां जाके हिकमत बसीरत से काम कर। यह बंदा गया, कई साल तक अपनी जिंदगी को खपा दिया, रुला दिया और अपने आप को मिट्टी बना दिया, और वहां जाके लोगों को वापस ईमान पे ले आया, इलाकों को वापस ईमान पे ये बंदा लाया। साल के बाद उजड़ा, वक्त से पहले बूढ़ा होके हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत बैठे हुए हैं, शेख यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। इसने दूर से देखा कि हजरत कहेंगे ओ मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बातों में थे, इसने जाके हाथ मिलाया, हजरत अस्सलाम वालेकुम। हजरत ने कहा वालेकुम सलाम, बैठिए। इसने कहा शायद पहचाना नहीं है। हजरत मैं फलां हूं, वो जिसको आपने भेजा था। जी ठीक, बैठे। उन्होंने कहा फिर भी नहीं पहचाना। हजरत फलां हूं, इतना अरसा फलां जगह रहा, फलां जगह इर्तिदाद था, मैं उस जगह गया। हाँ ठीक है। कहने लगा अच्छा यही कुछ है। तन मन जज्बे हर चीज मिटा दी, ये है। कुछ थोड़ी हौसला अफजाई भी कर देते, चलो माशाल्लाह तो कह देते, कुछ भी नहीं है। अब अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो गई है और उस नफ्स और शैतान ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया कि हौसला अफजाई सुन्नत नहीं है, फलां हदीस में फलां, वो सारा कुछ दिखाना शुरू कर दिया। चुप करके थोड़ी देर के बाद उठा और अपना पुराना सा बैग बिस्तर जो भी है वो उठाया और चल पड़ा स्टेशन की तरफ। रास्ते में जाते जाते क्योंकि इखलास से चलता रहा था, इखलास अपना काम दिखाता है, चलता चलता कहने लगा ये बता तूने सब कुछ अल्लाह के लिए किया था या अपने हजरत जी के लिए किया था?
बस 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 एक दम जो ये आया जज्बा और एकदम ख्याल आया तो रोना शुरू कर दिया। रोया, बहुत रोया। या अल्लाह मैंने तो तेरे लिए किया था, या अल्लाह वहां जज्बे जो भी हों मेरा इस्तकबाल ना हो, मुझे ठोकरे मारे, मुझे दूर रखें, मेरी बात पुराने आने वाले हजरत के आगे हो गए, मैं पीछे सफ में चला गया, पर मौला मैंने तो तेरे लिए किया था। अब जो वापस आया इधर इसका जज्बा बदला, अब उधर मुर्शिद को देखें, शेख को देखें, हजरत जी को देखें, यूं दूर से आके कहने लगे ओ मरहबा, खड़े हो गए। इधर उसका जज्बा बदला, इधर उधर इस्तकबाल हो गया। ओ मरहबा, माशाअल्लाह, कमाल कर दिया, इतने सालों के बाद, अरे वक्त से पहले बूढ़े हो गए, अरे लोगों के ईमान बच गए, उनकी आखिरत बच गई, गले लगाए, ये रोया फूट फूट के रोया कि बस मुझसे गलती हो गई, मैंने समझा था कि हजरत मेरा इस्तकबाल करेंगे, हजरत जी ने मेरा इस्तकबाल न किया, हजरत जी ने तो मेरी बेइतनाई की, लगता है इसमें मेरी इस्लाह भी थी, तरक्की भी थी, और मुझे ये कहा जा रहा था, असल में पैगाम दिया जा रहा था कि करना है तो अल्लाह के लिए, हमने झुकना है तो अल्लाह के लिए, चलना है तो अल्लाह के लिए, और जो अल्लाह के लिए चलता है वो दाएं बाएं की सारी हवाएं आती हैं, दाएं बाएं की सारी फजाएं आती हैं, जितनी हवाएं उठती रहें, आंधियां चलती रहें, नागवारियां आती रहें, जो अल्लाह के लिए चलता है उसकी मंजिल आगे होती है। मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जाओ। ये सफर जारी रखना है, कभी अंदर से तोड़ फोड़, कभी बाहर से तोड़ फोड़, कभी सोचों का एक सैलाब आएगा, कभी भाग जाएगा, निकल जाएगा, कहा चला गया, मेरा बच्ची बीमार है, पिंडी से आते आते 3 दिन लग गए, पता नहीं रास्ते में कश्ती थी, खराब हो गई कश्ती भंवर में आ गई, निकल यहां से। यहां तो हर वक्त निगरानी है, यहां तो हर वक्त हर चीज के ऊपर पकड़ है, यहां हर वक्त हर चीज के बारे में पूछ गूछ है। ये सारी सोचें आएंगी, ये सब जज्बे आएंगे। जो अल्लाह के लिए चलते हैं उनको जर्नेल को सिपाही बना दिया जाए। खालिद बिन वलीद, आहा, खालिद बिन वलीद को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सिपा सलार से सिपाही बना दिया। रात का वक्त था, फजर की नमाज में जा रहे थे, अंधेरा था। एक शख्स ने आवाज बदल के, एक लंबी कहानी है, खालिद बिन वलीद ने से पूछा कि उमर ने क्या किया खत्ताब के बेटे ने? तो उसने कहा जो किया ठीक किया, पहले मैं सिपा सलार बन के लड़ता था, अब सिपाही बन के अल्लाह की राह में चलूंगा, मैंने मंजिल नहीं छोड़नी। पहले सिपा सलार था, अब सिपाही हूं। अगर मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं तो फिर मैं सिपाही हूं, अगर मैं अल्लाह के लिए नहीं कर रहा तो फिर अपना धड़ा बनाता या एक तरफ हो जाता कि सारी उम्र लड़ता रहा और मुझे अल्लाह के हबीब जैसी हस्ती ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, इसने उठा के मुझे माजूल कर दिया। अल्लाह के लिए करना आ जाए, अल्लाह के लिए चलना आ जाए। जब अल्लाह के लिए करना और चलना आएगा, फिर ये जिंदगी में ये नहीं देखेगा फलां ने मुझे मुंह टेढ़ा किया था, फलां ने आंख टेढ़ी नहीं की थी, फलां ने हाथ नहीं फैलाया था, फलां ने आधा हाथ मिलाया था, फलां ने मुझ पे बातें कही थी, फलां ने मुझ पे एतराज किया था। नहीं, हमारी जिंदगी के सफर में आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, ओले भी आएंगी, बारिशें भी आएंगी, चश्मे भी आएंगे, पर याद रखिएगा समंदर एक गहरा होता है पर खामोश होता है, और समंदर का सफर जारी रहता है। दिल दरिया समंदरों डोंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। जिंदगी का सफर जारी रखना है। आप अपने इलाकों में तशरीफ ले जाएंगे, आप एतकाफ में हैं, आखिरी अशरे का एतकाफ करीब आ रहा है, अपने इलाकों में जाएंगे ईद के बाद, फिर एक मंजिल लेके जाएंगे, एक मकसद लेके जाएंगे, एक सोच लेके जाएंगे, एक फिक्र लेके जाएंगे, एक जज्बा लेके जाएंगे, और वो सोच और फिक्र ये है हर हाल में चलना आ जाए, हर हाल में चलना आ जाए, हर हाल में चलना आ जाए। जब हर हाल में चलना आ गया, अल्लाह इससे काम लेगा, वरना
हर हाल में चलना ना आया, ये एतराज सोचेगा, एतराज करेगा, ये नकाइश देखेगा, ये नकाइश का बयान करेगा, फिर गलतियों पे तबसरे करेगा। और अल्लाह का निज़ाम ये है, अल्लाह कहेगा हाँ तू अच्छा है, अच्छा एक तरफ रहे, हम इन बुरों से काम लेके उम्मत को हिदायत दे देंगे। और ये अच्छा एक तरफ बैठ के सोचेगा कि शिरक हो रहा और बिदअत हो रही, क्योंकि जब इंसान दूर हो जाता है उसको हर चीज शिरक और बिदअत नजर आती है, फितना नजर आता है, या शोहरत का जज्बा नजर आता है, शोहरत का जज्बा नजर आता है। मैंने आपको 2-3-4 दिन पहले भी एक इस तरह की बात याद है कि हम सिर्फ वज़ाइफ के लिए नहीं, कौन सी तरावी को बात मैंने कही थी इस तरह की, कौन सी तरावी को कही थी, शायद याद है कोई, कि हम सिर्फ वज़ाइफ तस्बीहात जिक्र के लिए नहीं आए, हमें एक जिंदगी का सलीका, वो क्या, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। ये जिंदगी में यहां से सीख के जाना है। कौन सी तरावी थी जब मैंने बात कही थी, याद है कोई है? जुमेरात को, हाँ मैंने ये मौजू बयान किया था, आज वही मौजू फिर बयान कर रहा हूं। और अगर हमारे मिजाजों में अल्लाह के लिए चलना होगा, अल्लाह के लिए चलना होगा, फिर लोगों की कड़वी आंख, लोगों के कड़वे बोल और लोगों की कड़वाहट और लोगों की ठोकर, कोई बातें, रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की बातें, साथियों की बातें, जमाने के कमेंट्स और बातें, हम मुकाबला भी नहीं करेंगे। एक चीज बड़ी अहम है, उनका एहतराम भी करेंगे, ये चीज अगली अहम है। उनसे तकाबुल नहीं करेंगे, एहतराम करेंगे, पर अपनी मंजिल को छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, जब तस्बीह खाने का हक होना दिल में आ गया, क्या लफ्ज का मैंने, जब तस्बीह खाने का हक होना दिल में आ गया और उतर गया, अब इस हक को कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। लेकिन हम वो लोग हैं जो मुआशरे से मुकाबला करने वाले नहीं हैं, हम टकराव वाले नहीं हैं, खेराव वाले नहीं हैं, जलाव वाले नहीं हैं, सड़कों पे एहतजाज करने वाले नहीं हैं, हम राहों को बंद करने वाले नहीं हैं, हम राहों को कुशादा करने वाले हैं। हमने कभी किसी से न टकराव न तकाबुल नहीं करना, हम टकराव नहीं करेंगे, हम सबसे मोहब्बत करेंगे, गैबाना दुआ करेंगे। जो हमारे मिशन को माने या ना माने, अरे हम कौन हैं तस्बीह खाने वाले, एक मामूली से छोटे से लोग हैं। दुनिया में तो कितने बेशुमार हैं जिन्होंने अभी तक रब को तस्लीम नहीं किया, दुनिया में कितने बेशुमार हैं जिस कमली वाले को तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने कितने बेशुमार हैं कब्र को तस्लीम नहीं किया, कितने बेशुमार हैं फरिश्तों के वजूद को तस्लीम नहीं किया, कितनी दुनिया में हैं जिन्नात को तस्लीम नहीं किया, कितने हैं जो जन्नत को तस्लीम नहीं करते, कहते ये ख्याली बातें हैं, आसमान को तस्लीम नहीं करते, आखिरत को तस्लीम नहीं करते, और निजाम आलम को अल्लाह चला रहा इसको तस्लीम नहीं करते। हम कौन हैं? तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मै को ताल्लुक नहीं पैमाने से, हाय अया यूरेश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है कि धुंधला सा एक तारा तू है। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा एक तारा तू है। तस्बीह खाना एक धुंधला सा तारा है, सहराओं में सफर करने वाले, वीरानों में सफर करने वाले, उनके लिए धुंधला सा तारा बड़ी नेमत होती है। मुझसे पूछो, मैंने सफर किए हैं। तारा होता है जो कहते इधर मंजिल है, तारे के अलावा कोई पता नहीं होता, वरना रुल के बंदे मर जाते हैं और उनको भेड़िए खा जाते हैं, लोमड़ियां और गिद्धे नोच लेती हैं। मेरी आंखों के सामने कई वाक़े हैं। असर नौरात है, असर नौरात है, बस रात का जमाना गुजर रहा है, धुंधला सा एक तारा तू है। तस्बीह खाना एक धुंधला सा तारा है, लोग इससे रोशनी पा रहे हैं, जिंदगियां सोचें जज्बे बदल रहे हैं, मखलूक से हट के खालिक की तरफ, माल से हट के आमाल की तरफ और दुनिया से हट के आखिरत की तरफ जुड़ रहे हैं। ये सफर जारी रखना है, इस सफर को आगे बढ़ाना है।
और अगर कभी कभी ज़हन में आ जाए ये क्या है, कभी उकताहट आ जाए, कभी घबराहट आ जाए, तो फिर चुप करके अपने वजूद को अपने रिश्तेदारों पे, अपनी फैमिली पे देखें, क्या मैं सारे रिश्तेदार मुझसे मुआफिक हैं या मैं सब रिश्तेदारों से मुआफिक हूं? क्या सबकी सोच मेरी साथ मिलती है या मैं सबकी सोच से मुआफिक हूं? तो फिर फौरन दिल कहेगा मेरे घर वाले, मेरा घर और मेरे करीब रिश्तेदार, उनकी सोचें ही मुझसे नहीं मिलती, मेरी सोचें उनसे नहीं मिलती, यही ही कमी बेशी है। और यही उसके बावजूद भी मिल बैठते हैं, खुशी गमी में शरीक होते हैं, एक दूसरे की सिला रहमी का ख्याल रखते हैं। इसके बावजूद भी, और एक ऐसी मंजिल, एक ऐसा निज़ाम जहां अल्लाह पाक ने उम्मत को जोड़ दिया है, आलम को जोड़ दिया है, उम्मत को जोड़ दिया है। 3-4 सालों से मीडिया में, मैं नाम नहीं लेता, मीडिया में तस्बीह खाने की पोस्टों का वाटर मार्क भी तब्दील नहीं करते, उठा के लगा देते हैं। और तस्बीह खाने की तरह लोगों को वज़ाइफ बताने में दुनिया टूट पड़ी है, सिर्फ 3-4 सालों से। इससे पहले वो लोग जो कहते थे कि हकीम तारिक कहां से वजीफे लाता है, ये बैठ के घड़ता है, आज वही तस्बीहां, वही वजीफे, वही तस्बीहां, वही वजीफे। एक साहब, एक मीडिया है बहुत बड़ा उनका, या बायसो या नूरो, उन्होंने हाथ से लिखा, जो फायदे मैंने बताए हैं सारे बताए फायदे बता, हाथ से लिख के उसकी पोस्ट आई हुई है। मेरे हर वजीफा, मेरी हर तस्बीह। एक मैगजीन की बात उनके बड़े से बैठा था, मैंने कहा आपने मेरा मजमून छापा है? कहने लगा कैसे? मैंने कहा मेरे नाम की जगह हम हकीम अब्दुल्ला का नाम लगाए। कहने लगा आप भी तो अब्दुल्ला हैं। मजमून मेरा था, अब उनकी शिकस्त थी कि मेरा मजमून कैसे लगाएं मेरे नाम से। दुनिया आपके मैसेज पे चल पड़ी है, दुनिया तस्बीह खाने के मैसेज को, तस्बीह खाने ने किसी को कॉपी नहीं किया, दुनिया तस्बीह खाने को कॉपी कर रही है। मैंने कभी हसद नहीं किया, क्यों? मेरा मकसद मेरी मंजिल पैगाम को बढ़ाना है, मेरा मकसद मेरी मंजिल पैगाम को पहुंचाना है, मेरा मकसद मेरी मंजिल लोगों के दुखों को ऐसे अंदाज से हल करना है कि उनको दुनिया भी मिल जाए, आखिरत मिल जाए। मेरा मकसद फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना है। अगर कोई कर रहा है, मेरी चीजों को कॉपी कर रहा है, तो अच्छी खुशी की बात है, वो फैला रहा है, वो फैला रहा है। अल्लाह वालो, सफर आते ही ये याद रखना, सफर सफर, ओहो हो, बहुत हालात आते हैं, बहुत मंजिलें आती हैं। इन सफरों में अपने आप को इस्तिकामत से लेके चलना, अपने मन को भी समझाना, अपने तन को भी समझाना, अपने जज्बों को भी समझाना, और अपने इस्तिकामत अल्लाह से मांगते चले जाना, मांगते चले जाना। अल्लाह से इस्तिकामत क्या करते जाना? मांगते चले जाना। अल्लाह इस पे जो है दुनिया आखिरत की राहें खोलेगा, वरना इस रेले में कई बह जाएंगे और उनके सामने एतराज होंगे, उनके सामने गलतियां होंगी, उनके सामने एक बहुत बड़ा निजाम होगा। और होगा क्या? उसके अंदर होगा वजूद कुछ नहीं। बच्चे के ना नीकर में एक रबड़ डालते हैं, उसको खींचे बहुत बड़ा हो जाता है, हालांकि होता छोटा सा है ना, फिर छोड़े फिर इतना सा हो जाता है। ये शैतान और नफ्स एतराज की दुनिया में उसको इतना फैला के दिखाएगा, इतना फैला के दिखाएगा, इतना फैला के दिखाएगा, इंसान कहेगा गोशाफियत है, बच के चलो, पर वो बच के चलना नहीं। कहा करना 100 गलतियां कबूल, ना करना एक गलती कबूल नहीं, किसी बड़ी की बात में। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, गौर से सुनना। फरमाते थे अरादत की राहों में, यह लफ्ज़ जरा गौर से सुनिएगा, एक बहुत बड़े मुर्शिद कामिल की बात है। अरादत की राहों में फुटबॉल बन जाने का मजा आता है, और अरादत की राहों में फुटबॉल बन जाओ, कोई इधर से किक मारे, कोई इधर से किक मारे। फुटबॉल कहती है सब तरफ से किक मारो, पर मेरे गोल की तरफ ना जाने देना, वरना गोल हो के मैं आउट हो जाएंगे। यानी मुझे निकालना ना मैं टोंका, तो ना मैं पौंका, तो ना मैं शोर मचाऊं।
नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। इस्तिकामत मांगे। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत, ऊंट की तरह इस्तिकामत जिसके साथ चला दो। वाइलल जिबाल कैफा नुसिबत, पहाड़ खड़ा है, बड़े तूफान आए, बड़ी हवाएं आई, उसने जगह नहीं छोड़ी। वाइलल अर्ज़ कैफ अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत, आसमान को देखना कितना ऊंचा, अपनी बुलंदियों के साथ हौसले ऐसे बुलंद रखना। वाइलल जिबाल कैफा नुसिबत, पहाड़ों को नस्ब कर दिया, जगह से नहीं हिलते। व इलल अर्ज़ कैफा सुतिहत, जमीन को लोगों ने सताया, किसी ने थूका, किसी ने पेशाब किया, किसी ने खोंटा, किसी ने गाड़ा। जमीन अपना सीना खुला रख के हमारे साथ चल रही है और हमारा साथ दे रही है। और मैं इन चार सिफात के साथ चलते रहोगे, अल्लाह तुम्हें चलाता रहेगा, अल्लाह आगे बढ़ाता रहेगा, और मंजिलें देता जाएगा। और अगर हमने एतराज देखने शुरू कर दिए और कमियां देखनी शुरू कर दी, अल्लाह पाक कहेगा ठीक है, मैं किसी और को लाऊंगा। कितनी बड़ी हस्ती मुलाकात करने जा रहे थे, कहा कि हजरत ये इतराज करता है, ये कमियां देखता है और तबसरे करता है। भाई छोड़ो, वो दौर था काम का, बहुत अच्छा दौर था, हमने कर लिया। अब नए नए लोग आ गए हैं, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अब नए नए लोग आ गए हैं। ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, हर बंदा शेख भी है, मुर्शिद भी है, अमीर भी है। छोड़ो भाई, पावा के हर लोगों की गलतियां खामियों को बयान करता है। हजरत ने फरमाया हाथ छुड़ा के वापस चलो, इसके लिए दुआ करो, इस्तिगफार करो, इससे मुलाकात न करो। यह भी एक वजीफा है जो आज मैं बता रहा हूं, यह भी एक तस्बीह है जो आज मैं बता रहा हूं। क्यों? इस मुआशरे में रहना है। मुआशरे में हर तरफ से हवाएं उठेंगी, आफात उठेंगी, तबसरे उठेंगे, कमेंट्स आएंगे, बहुत अंदर से बाहर से इंसान है मुतासिर हो जाता है। क्यों मुतासिर होता है? पता है क्या? 70% लिक्विड है इंसान में, 30% सॉलिड है। हड्डी 30% है, इनको उठा दे। पूछे मैंने क्या कहा? इनसे कहें मैंने क्या कहा? हाँ जी, क्या कहा? सुबह भी सोए, रात को भी सोए। बर्तन ऊंधा हो तो बारिश का पतरा, बारिश कैसे पड़ेगी? बर्तन ऊंधा हुआ तो बारिश का तो एक कतरा ही नहीं पड़ेगा। आपकी फायदे के लिए मिन्नत और दरखास्त करता हूं। आप सोचें, क्या बात कर रहा था? 70% जिस्म लिक्विड है, 30% हड्डी है। हमेशा लिक्विड चीज जो भी होती है, ठंडक में रखो जम जाएगी, गर्मी रखो पिघल जाएगी। पानी है, ठंडक रखो बर्फ बन जाएगा, और गर्मी में रखो। ये जिस्म मुतासिर होता है लफ्जों से, चीजों से, दुआओं से, बददुआओं से, गाली से, सोचों से, जज्बों से मुतासिर होता है। पर याद रखिएगा, यही जिस्म अल्लाह को मतलूब है। अगर मुतासिर ना हो तो फिर वो फरिश्ता ही हुआ ना, फिर तो फरिश्तों की जमात चाहता है। तू पुराना हो के फरिश्तों की जमात चाहता है। तू कहता है फरिश्तों की जमात मेरे साथ चले। एक तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो, एक तरफ मिकाइल अलैहिस्सलाम हो, एक तरफ इसराफील अलैहिस्सलाम हो, जिब्रील को भी घर बिठाओ, इजराइल को। तू कहते हैं मेरे साथ फरिश्तों की जमात चले। तो अपने साथियों की कमियां ढूंढता है और उन कमियों में तबसरे करता है। तो फरिश्तों की जमात चाहता है। फरिश्तों की टीम तो तुझे नहीं मिल सकेगी। फिर इन्हीं खामियों वालों से कहा मुझे जंग के एक बुजुर्ग, कहा कि बैरून गए, आपस में खलफशार हुआ बहुत ज्यादा। मैंने खत लिखा और खत लिख के कहा कि मैं उनको जाके उनको खत पोस्ट करूंगा हाजी साहब को। कहा कि रात को कमली वाले तशरीफ लाए और फरमाया इन कमियों के बावजूद भी मुझे अच्छे लगते हैं, इनकी शिकायतें करता है। कहा मैं रो पड़ा और खत को उठा के फाड़ दिया। न मांगे जिब्रील, ये निजाम ऐसे ही चलेगा। इन कमियों के बावजूद भी अल्लाह काम ले रहा है। अल्लाह ने उसके वजूद को जरिया बनाया हुआ है उम्मत की हिदायत का, खैर का।
अल्लाह तो हमसे काम ले ले, अल्लाह हमारे वजूद को, उसको ज़रिए को कबूल कर ले। इन कमियों के बावजूद अल्लाह पाक ने मुझे आपको कबूल किया हुआ है। इससे बड़ी नेमत क्या है? और इससे बड़ा अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सादत किया है। तो मेरी दरख्वास्त ये है, आप अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे ईद के बाद, माशाअल्लाह आप एतकाफ में हैं, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से और बहुत जज्बे से चल रहे हैं। ये छोटी छोटी हवाएं, ये फजाएं, ये सोचें, ये तबसरे, ये चलते रहेंगे। हमने तकाबुल नहीं करना, मुआशरे का मुकाबला नहीं करना, ना सियासत में, ना मजहब में, ना मसलक में, ना फिरके में, ना रंग में, ना जुबान में, ना तहरीकों का हिस्सा बनना है। हमने तकाबुल नहीं करना, हमने सबके लिए दुआ और एहतराम करना है, जो माने या ना माने, जो हमारी बात को समझे या ना समझे। और अल्लाह से एक चीज़ मांगनी है कि अल्लाह बस तू चलाए रख, इस मंजिल के साथ, इस काफिले के साथ चलाए रख, जैसे भी हैं चलाए रख। और अगर एतराज किया तो फिर वो फरिश्तों की जमात मांगता है। और ख़ास तौर पे जो पुराना और इब्तदाई है वो अल्लाह से इस्तिकामत ज़्यादा मांगे, क्योंकि ये इंजेक्शन उसको ज़्यादा लगते हैं। जी हमें तो कोई सुनता ही नहीं, हमें तो कोई जानता नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हालांकि पीछे खुद हो गया है। और उसने एतराज़ करने शुरू कर दिए हैं, तबसरे करने शुरू कर दिए हैं, और जो एतराज़ होते हैं उन पे यकीन करना शुरू कर दिया है। मांगते रहें, मांगते रहें, अल्लाह से मनवाते रहें, मांगते रहें, मनवाते रहें, मांगते रहें, मनवाते रहें अल्लाह के खजानों से। और आज हम नक्श लिखेंगे। आज का हमारा नक्श जो है वो कौन से अल्फाज हैं? खा और मीम, हरूफ तहज्जी के नक्श है, याद रखिएगा। ये ऐसे नहीं हैं, मुस्तनद किताबों से इसके दलाइल हैं, क्योंकि बाज़ मुफ्ती आज़म मजमे में आए बैठे होते हैं, होते दूर हैं, बेचारे दूर चले गए होते हैं, देखते हैं ये क्या है, देखो उन्होंने कहा ना मैंने शिरक और बिदअत चल रहा है, तेरा इल्म नहीं है, तेरा इल्म कमज़ोर है, अपने इल्म को मजबूत कर, अकाबिर की किताबों में हवाले देख, उनकी ज़िंदगी को समझ, तो यह समझ आएगा कि उम्मत को उन्होंने किन हिकमतों बसीरतों से जोड़ा था, और उम्मत को कौन से मोती दिए थे, और उम्मत को ये अमाल दे के उनको शिरक और बिदअत से कैसे बचाया था। तो नक्श लिखेंगे अब, लेकिन अरे सुनो तो सही, याद है, फिर भी याद करा दिया, अच्छी बात है, अच्छा किया, आइंदा भी याद करा देना। नक्श लिखेंगे पर यकीन से, इत्तेमाद से, और इससे पहले अल्लाह के दो नाम, ऐसे मुबारक नाम, ऐसे ताकतवर नाम, जिन नामों के जरिए से अल्लाह की मोहब्बत, रहमत, बरकत और अता और शफकत एक पल में उमड़ आती है। वो दो नाम हैं, या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जलील, या जलीलो, या जलीलो, जमीलो, या जलीलो, या जलीलो, 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 या 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 जलीलो। आमीन, आमीन, आमीन। आज का हमारा नक्श जो है उसमें हम जो बात लिखेंगे, जो खास अमल लिखेंगे, अल्लाह अकबर, आज एक हाजत लिखेंगे, बाकी हाजतें लिखेंगे, हर दफ़ा रोज़ एक हाजत लिखते हैं, बाकी हाजतें आप जो है इंशाल्लाह रोज़ाना लिखेंगे, और बहुत ज़्यादा लिखेंगे, जो खाली जगह हैं उनके चारों तरफ लिखेंगे। आज जो हाजत लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को क़यामत तक अपने दर से जोड़े रख। अल्लाह कभी हमें मरदूद और महरूम न कर, मरदूद और महरूम न कर, एक। और दूसरा, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को कभी हज, बैतुल्ला, रोज़ा और कमली वाले के घर और मस्जिद नबवी से महरूम न करना। बार बार हज उम्रे की सादतें देना। लिखें ये दोनों सादतें और दोनों बरकतें लिखें, और दोनों सादतें लिखें।
माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और इस पे रोज़ाना तवज्जो से इसको जो है फाड़ के मटके में डाल देंगे, इस नक्श को हिस्सा, और इंशाअल्लाह रोज़ाना इस पे अमल होता है। और 27 की रात को इसका अमल होगा। सारा कुरान हुरूफ तहजी से मिलके बना है, और ये हुरूफ तहजी के नक्श हैं। बड़ी बड़ी मुहद्दिसीन अकाबिर की किताबों में इसके हवाले और मौजूद हैं। सारा कुरान हुरूफ तहजी से मिलके बना है, ये हुरूफ तहजी के नक्श हैं। और इंशाअल्लाह हम रोज़ाना मुजरिमाना हाज़री अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, मुजरिमाना हाज़री अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। पर अल्लाह को कहते हैं या अल्लाह, तो खुद ही तो कहता है रोना ना आए रोने वाली शक्ल ही बना ले। अल्लाह मुजरिम है और तेरे सामने मुजरिम बन के मैं गया। इस हालत को मैं एक वाक़या सुनाऊं। इसी हालत पे मैं आज़रबाईजान गया, बाकू गया। एक जगह हम लंबा सफ़र कर रहे थे, मेरे साथ मियाँ तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। एक जगह हम ठहरे, वहाँ हर कब्र पे उस कब्र वाले की शक्ल का बुत बनाते हैं, टनों वजनी होता है, मोटा पत्थर कीमती। तो एक जगह एक बाबे के पास गए, तो वो बुत तराशता था, मशीन थी उसके पास सारे, फिर वो बुत कब्रों पे लगाते हैं, वहाँ रिवाज है। वहाँ ना शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, साथ हमारा तर्जमान था, मैंने इससे कहा बाबा जी से पूछे ये शराब की बोतल है। बाबा जी ने पता नहीं ऐसे कहा, ऐसे हाथ करके कहा ना 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 ना, कि मैं अगर ये पीऊं तो मैं मुजरिम बन जाऊं। मुझे आज भी बाबा की वो नदामत याद है, पीता था या नहीं पीता था, पर अल्लाह के यहाँ ये नदामत की बड़ी कीमत है, अल्लाह के यहाँ शर्मिंदगी की बड़ी कीमत है। तो हम ये करके अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन। जहां तक हाथ जाए इसको पूरे बदन पे फेरे, पूरे बदन पे। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह हमारे आखिरी अशरे के अमाल, आखिरी अशरे की बरक़ात होंगे। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन बिरहमतिका। या सारे बैठे रहें।